تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے دسہرہ تہوار کے موقع پر اپنے آبائی مقام کوڑنگل کا دورہ کیا اور دسہرہ تہوار منایا۔ دسہرہ تہوار کے موقع پر وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی اپنے آبائی حلقے کوڑنگل پہنچے، جہاں پر انہوں نے اپنے پیاروں کے ساتھ وقت گزارا اور دسہرہ تہوار منایا۔ دریں اثنا انہوں نے حلقے کے قائد و وقف کمیٹی کے رکن یوسف کی رہائش گاہ پر مسلمان بھائیوں سے بھی ملاقات کی اور ان کے ساتھ دوپہر کا کھانا کھایا۔ وزیر اعلیٰ نے سڑک کی توسیع کاموں کے لیے مسمار کیے گئے مذہبی مقامات کا بھی دورہ کیا اور کوڑنگل درگاہ کے منہدم ڈھانچے کو دوبارہ تعمیر کرنے کا یقین دلایا۔ ٹمریز کے وائس چیئرمین فہیم قریشی نے بتایا کہ وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے کوڑنگل درگاہ کے منہدم ڈھانچے کو دوبارہ تعمیر کرنے کا یقین دلایا ہے۔ تلنگانہ مائنورٹیز ریزیڈینشل ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن سوسائٹی کے وائس چیئرمین فہیم قریشی نے کہا کہ چیف منسٹر ریونت ریڈی نے کوڑنگل درگاہ کے مسمار شدہ مقام کا دورہ کیا ہے اور دسہرہ تقریب کے ایک حصے کے طور پر مقامی مسلمانوں سے ملاقات کرتے ہوئے ان کے ساتھ دوپہر کا کھانا کھایا ہے۔ فہیم قریشی نے انکشاف کیا کہ چیف منسٹر ریونت ریڈی نے مسمار شدہ ڈھانچے کو دوبارہ تعمیر کرنے کا یقین دلایا ہے۔ انہوں نے حقوق کے تحفظ اور مسلمانوں کی فلاح و بہبود کے لیے کام کرنے پر چیف منسٹر ریونت ریڈی کی ستائش کرتے ہوئے کہا کہ تلنگانہ میں کانگریس حکومت کے اقتدار میں آنے کے بعد عامر علی خان کو MLC نشست دی گئی، تاہم سابق وزیر اعلیٰ KCR، ان کے فرزند KTR اور MLC داسوجی شرون نے سپریم کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹایا اور عامر علی خان کے خلاف سپریم کورٹ نے فیصلہ سنا دیا۔ انہوں نے الزام لگایا کہ داسوجی شرون بھارتیہ جنتا پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں اور اب وہ بھارت راشٹر سمیتی کا حصہ ہیں۔ ان کا الزام ہے کہ داسوجی شرون مسلمانوں کے خلاف ہیں۔ فہیم قریشی نے خدا بک ڈسٹریبیوٹر کی جانب سے پرانی حویلی علاقے میں منعقد کیے جا رہے بک فیئر کا بھی مشاہدہ کیا۔ آپ کو بتا دیں کہ 1 اکتوبر سے بک فیئر کا آغاز ہوا ہے اور یہ 5 اکتوبر تک جاری رہے گا۔ دریں اثنا انہوں نے منتظمین کی ستائش کرتے ہوئے انہیں مبارکباد پیش کی۔ فہیم قریشی نے کہا کہ کتابوں کے ذخیرے میں مختلف نامور مصنفین کی کتابیں موجود ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ کتب میلہ بہت زیادہ کارآمد ہے۔ فہیم قریشی نے منتظمین کو تجویز پیش کی ہے کہ وہ اضلاع میں بھی اس طرح کے بک فیئرز منعقد کریں۔ نوجوانوں کو فہیم قریشی نے مشورہ دیا ہے کہ وہ بک فیئر کا مشاہدہ کریں اور اس سے استفادہ حاصل کریں۔ BRS کے مسلم قائدین نے کانگریس حکومت کے خلاف جوبلی ہلز میں انوکھی مہم چلائی۔ حکومت کی وعدہ خلافیوں اور مسلمانوں کے ساتھ کی گئی ناانصافیوں کو اجاگر کیا۔ ذرائع نے بتایا کہ BRS کے اقلیتی قائدین نے بورا بنڈا مسجد محمدیہ میں نماز جمعہ ادا کی اور مختلف مساجد کے باہر مصلیوں سے ملاقات کرتے ہوئے ان میں کانگریس بقایا کارڈز تقسیم کیے۔ عوام بالخصوص مسلمانوں کو کانگریس حکومت کی وعدہ خلافیوں اور مسلمانوں کے ساتھ کی گئی ناانصافیوں سے بھی آگاہ کیا گیا۔ اس موقع پر ایکس MLC محمد سلیم، تلنگانہ مائنورٹی فائنانس کارپوریشن کے سابق چیئرمین امتیاز اسحاق، BRS لیڈر اعظم علی، حج کمیٹی کے سابق صدر نشین محمد مسیح اللہ خان و دیگر بھی موجود تھے۔ مسیح اللہ خان نے اس موقع پر میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ ریاست تلنگانہ میں کانگریس حکومت مسلمانوں کے ساتھ مسلسل ناانصافی کیے جا رہی ہے۔ وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی کے اپنے حلقے کوڑنگل میں سڑک کی توسیع کے نام پر قبرستانوں اور چیلوں کو مسمار کر دیا گیا اور یہ قابل مذمت ہے۔ اس سے مسلمانوں کے مذہبی جذبات مجروح ہوئے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ ریاست میں وقف بورڈ کے CEO کو بھی مقرر نہیں کیا گیا ہے، جس کی وجہ سے وقف کے اہم امور ٹھپ ہو کر رہ گئے ہیں۔ امام و مؤذنین کو تنخواہیں نہیں ملی ہیں۔ درجنوں خاندان معاشی مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں۔ BRS قائدین نے کہا ہے کہ کانگریس حکومت نے انتخابات سے قبل اقلیتوں سے جو وعدے کیے تھے وہ آج تک پورے نہیں ہوئے اور اب جوبلی ہلز کے ضمنی انتخاب میں دوبارہ جھوٹے وعدوں کا سہارا لے کر وہ عوام کو گمراہ کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ انہوں نے واضح کیا ہے کہ بھارت راشٹر سمیتی عوام کے درمیان جائے گی اور سچائی سامنے لائے گی اور مسلمانوں کے حقوق کے لیے آواز بلند کرتی رہے گی۔ حیدرآباد کے انچارج منسٹر پونم پربھاکر اور AIMIM MLA میر ذوالفقار علی نے اندرما
अमकना स्कीम के तहत इस्तेफादा कुनंदगान में हाउसिंग अलॉटमेंट प्लेट्स तकसीम किए। इंद्रमा अमकना स्कीम के तहत इस्तेफादा कुनंदगान में हाउसिंग अलॉटमेंट प्लेट्स की तकसीम अमल में आई। AIMIM MLA मीर जुल्फिकार अली और हैदराबाद के इंचार्ज मिनिस्टर पूनम प्रभाकर ने इस्तेफादा कुनंदगान में हाउसिंग अलॉटमेंट प्लेट्स तकसीम किए। इस मौके पर मेयर गढ़वाल विजय लक्ष्मी, रुकन राज्यसभा अनिल कुमार यादव व दीगर भी मौजूद थे। आपको बता दें कि हल्का असम्बली चार मीनार, मलकपेट, याकूबपुरा और चंद्रान गुड्डा के तकरीबन 1024 इस्तेफादा कुनंदगान को ये अलॉटमेंट प्लेट्स सौंपे गए हैं। टीपीसीसी के सदर व MLC महेश कुमार गौड़ ने गांधी भवन में साबिक वजीर दामोदर रेड्डी की तस्वीर पर खिराज अकीदत पेश किया। कांग्रेस पार्टी के सीनियर रहनुमा दामोदर रेड्डी दौरान इलाज इंतकाल कर गए। उनकी आखिरी रसूमात कल यानी 4 अक्टूबर को अदा की जाएगी। टीपीसीसी के सदर व MLC महेश कुमार गौड़ ने गांधी भवन में दामोदर रेड्डी की तस्वीर पर फूल चढ़ाए और उन्हें खिराज अकीदत पेश किया। दामोदर रेड्डी की मौत को उन्होंने कांग्रेस पार्टी के लिए नातलाफी नुकसान करार देते हुए कहा कि दामोदर रेड्डी की एक तवील सियासी तारीख रही। उन्होंने नज्म, ज़ब्त और लगन के साथ पार्टी के लिए काम किया और उनके इंतकाल से मुझे बहुत दुख पहुंचा है। तेलंगाना जागृति की सरबराह की कविता ने वाज़ेह किया है कि उनका BRS से कोई ताल्लुक नहीं है। तेलंगाना जागृति की सदर की कविता ने BRS पार्टी की जानिब से चलाई जा रही बकाया कार्ड मुहिम पर एक सवाल के जवाब में वाज़ेह किया कि वो BRS में नहीं है। डेबिट कार्ड मुहिम BRS की है और उनका BRS से कोई लेना देना नहीं है। ताहम उन्होंने कहा कि BRS को अवामी मसाइल के साथ साथ BC रिजर्वेशन पर भी हुकूमत से सवाल करना चाहिए। अब जबकि के कविता ने वाज़ेह किया है कि उनका BRS से कोई ताल्लुक नहीं है। कयास आराइयां मजीद बढ़ गई है कि आया वो नई पार्टी कायम करेंगी या फिर तेलंगाना जागृति को ही पार्टी में तब्दील कर देंगी। आइंदा मुनक़िद GHMC और मुकामी इंतखाबात के चलते सबकी नजरें के कविता के अगले इक़दामात पर जमी हुई हैं। दशहरा त्यौहार के मौके पर सदर TNGOs यूनियन स्कूल एजुकेशन ने जनरल सेक्रेटरी TNGOs सेंट्रल यूनियन डॉक्टर SM हुसैनी मुजीब को तहनीत पेश की। दशहरा त्यौहार के मौके पर TNGOs यूनियन स्कूल एजुकेशन के सदर ने TNGOs सेंट्रल यूनियन के जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर SM हुसैनी मुजीब से मुलाकात की और उन्हें तहनीत पेश की। इस मौके पर डॉक्टर SM हुसैनी मुजीब की जानिब से सभी को दशहरा त्यौहार की मुबारकबाद पेश की गई। इस मौके पर R राजकुमार व दीगर भी मौजूद थे। मजलिस बचाओ तहरीक के तर्जुमान अमरुद्दौला खान खालिद ने नारायणपेट जिले के कोसगी मंडल में एक दरगाह और चिल्ले को हटाने का इंकशाफ किया। कांग्रेस के अक़लियती कायदीन की खामोशी पर भी सवाल उठाया। तफसीलात के मुताबिक नारायणपेट जिले के कोसगी मंडल में एक और दरगाह और चिल्ले मुबारक को हटाया जा रहा है। मजलिस बचाओ तहरीक के तर्जुमान अमरुद्दौला खान खालिद ने इस वाक़े की तरफ तवज्जो दिलाई और उन्होंने कहा कि कुछ दिन पहले ही रेवंत रेड्डी के हल्के इंतखाब में 3 कब्रस्तानों की बाउंड्री वॉल समेत कई कबूर को हटाया गया। एक चिल्ला और दरगाह को भी नुकसान पहुंचाया गया। उन्होंने सवाल किया है कि क्या कोडंगल असेंबली हल्के के मुसलमानों ने अपने मजहबी ढांचों को हटाने के लिए रेवंत रेड्डी को वोट दिया था। अमरुद्दौला खान खालिद ने पूछा है कि क्या तेलंगाना के मुसलमानों ने अपने मजहबी जज्बात को ठेस पहुँचाने के लिए कांग्रेस को इख्तियार दिलाया है। मुसलमान कायदीन जैसे कि मोहम्मद अली शब्बीर, मोहम्मद उबैदुल्लाह कोतवाल, फहीम कुरैशी, ताहिर बिन हमदान, सैयद अजमतुल्लाह हुसैनी और खुसरो पाशा का जिक्र करते हुए उन्होंने पूछा है कि तमाम मुस्लिम कायदीन इन निज़ामी कार्रवाइयों पर क्यों खामोशी इख्तियार किए हुए हैं। अमरुद्दौला खान खालिद ने कहा कि कांग्रेस की हुकूमत होने के बावजूद तेलंगाना में मुसलमान मुखालिफ इक़दाम किए जा रहे हैं और इसका असर दूसरी रियासतों पर भी पड़ सकता है। उन्होंने पूछा है कि आखिर मोहब्बत की दुकान कहाँ है। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को उन्होंने मशवरा दिया है कि इस तरह के वाक़यात को नजरअंदाज न किया जाए बल्कि इनका गहरा तज्जिया किया जाए।
TGSRTC के मैनेजिंग डायरेक्टर वाई नागी रेड्डी ने महात्मा गांधी बस स्टेशन का दौरा करते हुए मुसाफिरीन को फराहम की जा रही सहूलियात का जायजा लिया। वाई नागी रेड्डी ने हाल ही में TGSRTC के VC और MD का ओहदा संभाला है। उन्होंने जुमा को महात्मा गांधी बस स्टेशन पहुंचकर मुसाफिरीन को फराहम की जा रही सहूलियात का जायजा लिया, हुकाम से बातचीत की और मुसाफिरीन के लिए सहूलियात में इजाफा करने और RTC की खिदमत और कारकर्दगी को मजबूत बनाने पर बातचीत की। मध्य प्रदेश में टमाटर वायरस ने खौफ व हरास फैला दिया, कई स्कूली तलबा वायरल इंफेक्शन का शिकार हो गए। तफसीलात के मुताबिक मध्य प्रदेश के भोपाल में कई स्कूल के बच्चे टमाटर वायरस के नाम से मशहूर वायरल इंफेक्शन में मुब्तला पाए गए। स्कूल इंतजामिया ने वालिदैन को इसके बारे में आगाह किया है। आपको बता दें कि टमाटर वायरस नामी ये बीमारी, जिसे तिब्बी तौर पर हाथ पांव और मुंह की बीमारी कहा जाता है, हाथों, पैरों, कल्बों, गर्दन के नीचे और मुंह के अंदर सुर्ख दानों का सबब बनती है और ये दाने बाद में छालों में बदल जाते हैं। बच्चे खारिश, जलन, बुखार, गले की खराश और दर्द का भी शिकार होते हैं। इन्फेक्शन आसानी से एक बच्चे से दूसरे बच्चे में फैलता है और यही वजह है कि स्कूल इंतजामिया ने वालिदैन को मशवरा दिया है कि वो ये अलामात पाए जाने पर अपने बच्चों को घर पर ही रखें ताकि इस बीमारी को मजीद फैलने से रोका जा सके। दूसरी जानिब माहिरीन अखबार ने वजाहत की कि ये बीमारी एचिनोकोकस और कोक्साकी वायरस की वजह से होती है और ये 6 माह से 12 साल की उम्र के बच्चों को मुतासिर करती है। उन्होंने मजीद कहा कि HFMD आमतौर पर 1 हफ्ते या फिर 10 दिन के अंदर खुद ही खत्म हो जाती है। सेहत के लिए कोई संगीन खतरा नहीं है। आपको याद दिला दें कि केरला में भी साल 2022 में इसी तरह के टमाटर फ्लू के 80 वाकयात रिपोर्ट हुए थे। इसकी वजह से बच्चों के जिस्म पर सुर्ख दाने पड़ते हैं, इसीलिए उसे टमाटर फ्लू का नाम दिया गया है। तेलंगाना अक़लियती मालियती कॉरपोरेशन के साबिक़ चेयरमैन सैयद इम्तियाज इसाक ने कहा कि अवाम में शऊर बेदार करने के लिए बाकी कार्ड्स तक़सीम किए जा रहे हैं। जुबली हिल्स ज़िमनी इंतखाब के पेश नज़र भारत राष्ट्रीय समिति के अक़लियती क़ायदीन कांग्रेस हुकूमत के खिलाफ मुहिम चला रहे हैं और बाकी कार्ड्स तक़सीम करते हुए उनमें शऊर बेदार करने का काम कर रहे हैं। तेलंगाना अक़लियती मालियती कॉरपोरेशन के साबिक़ सदरनशीन सैयद इम्तियाज इसाक ने नमाज जुमा के बाद कांग्रेस ड्यू कार्ड्स तक़सीम किए। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि अपोजिशन जमात BRS की ये जिम्मेदारी बनती है कि वो अवाम को कांग्रेस की धोखाधड़ी से वाकिफ करवाएं। इम्तियाज इसाक ने कहा कि जुबली हिल्स हल्के की अवाम को ये बताया जा रहा है कि कांग्रेस धोखा देने वाली पार्टी है और अवाम को उसे सबक सिखाना चाहिए। वज़ीर ख़ज़ाना निर्मला सीतारमण ने जोर देकर कहा कि मुल्क की मैशियत मुस्तहकम है और उसमें लगातार तरक्की हो रही है। वज़ीर ख़ज़ाना निर्मला सीतारमण ने चौथे कोटलिया इक़्तिसादी कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताही खुतबा दिया और हुकूमत की हुसूलियाबियों पर रोशनी डाली। उन्होंने कहा कि पिछले 5 वर्षों में हुकूमत तरक्याती मंसूबों के लिए सरमायाजाती अखराजात में मुसलसिल इजाफा कर रही है और अब निजी सरकारी शिराकतदारी मंसूबों में निजी शोबों की दिलचस्पी भी नजर आ रही है। आपको बता दें कि वज़ारत ख़ज़ाना के ताउन से इंस्टीट्यूट ऑफ इकनॉमिक ग्रोथ के ज़ेर एहतमाम संगीन आलमी गैर यकीनी हालत में खुशहाली के मौजू पर 3 रोज़ा कॉन्फ्रेंस मुनक्किद हो रही है, जिसमें मुल्क व बैरून मुल्क के माहिर इक़्तिसादियात, माहिरीन, पॉलिसी साज और आलमी तंजीमों के नुमाइंदे हिस्सा ले रहे हैं। निर्मला सीतारमण ने जोर देकर कहा है कि मुल्क की मैशियत मुस्तहकम है और उसमें लगातार तरक्की हो रही है। रियासत आंध्र प्रदेश के कर्नूल जिले में देवरागट्टू बन्नी उत्सव में 2 अफराद हलाक और 100 से ज्यादा जख्मी हो गए। तफसीलात के मुताबिक कर्नूल जिले के होलागंडा मंडल में एक रिवायती त्यौहार देवरागट्टू बनी उत्सवम मनाया जाता है। ये त्यौहार जुमेरात को
पुरतशद्दुद हो गया और 2 अकीदतमंद हलाक जबकि 100 से ज्यादा अकीदतमंद जख्मी हो गए। आपको बता दें कि आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक से लोगों की एक बड़ी तादाद वहां पर इकट्ठा हुई थी। ये त्योहार हमेशा विजयदशमी की रात को मनाया जाता है और 2 गिरोह के शुरका एक दूसरे पर लाठियों से हमला करते हैं। पुलिस की मौजूदगी में ये त्योहार पुरतशद्दुद शक्ल इख्तियार कर गया। पुलिस ने बताया कि जख्मियों में से कम 5 की हालत तशवीशनाक है और उन्हें अदोनी के सरकारी जनरल अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। फिजाइया के सरबराह एयर चीफ मार्शल एपी सिंह ने कहा कि दहशतगर्द चाहे जहां भी ठिकाने बना लें, फिजाइया उन्हें नाबूद करने की सलाहियत रखती है। एयर चीफ मार्शल एपी सिंह ने एयरफोर्स डे से कबल अपनी सालाना प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि दहशतगर्द चाहे पाकिस्तान में अपने ठिकाने जितना भी दूर या कहीं भी बना लें, हिंदुस्तानी फिजाइया के पास उन्हें तबाह करने की सलाहियत मौजूद है। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान में दहशतगर्दों के ठिकानों के तबाह होने के बाद अब दहशतगर्द खैबर पख्तूनख्वा के दूर दराज इलाकों में अपने ठिकाने बना रहे हैं। एयर चीफ मार्शल ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर में फिजाइया ने अपनी नाकाबिले तस्वीर और दुरुस्त निशाना लगाने की सलाहियत को साबित किया है और हिंदुस्तानी लड़ाका तैयारे गिराने के पाकिस्तान के दावे महज अफसानवी कहानियों जैसे हैं। गजा की मैसूर अवाम के लिए इमदाद लेकर जाने वाले पाकिस्तान के साबिक सीनेटर मुश्ताक अहमद खान व दीगर को इस्राएली अफवाज ने गिरफ्तार कर लिया है। इजराइल ने बताया कि इस्राएली अफवाज ने जमात इस्लामी के साबिक सीनेटर मुश्ताक अहमद खान को गिरफ्तार कर लिया। वो 5 रुकनी पाकिस्तानी वफ्द की क़यादत करते हुए गजा जाने वाले इमदादी बेड़े पर सवार थे। मुश्ताक अहमद ग्लोबल समूद फ्लोटिला का हिस्सा थे जो खुराक और अद्वियात लेकर गजा की महसूर आबादी तक पहुंचने की एक बैनुल अक़वामी कोशिश है। बताया जाता है कि 40 से ज्यादा सिविल बहरी जहाजों पर मुश्तमिल ये फ्लोटिला इसराइली नाकाबंदी के खिलाफ एक नुमाया अलामत के तौर पर आलमी तवज्जो का मरकज बना हुआ है। बताया जाता है कि इसराइली बहरिया ने 13 कश्तियां रोककर उनके मुसाफिरीन को हिरासत में लिया, जिनमें साबिक सीनेटर मुश्ताक अहमद खान व दीगर शामिल हैं, जबकि तकरीबन 30 जहाज अपनी मंजिल की जानिब रवा दवा हैं और बाज़ गजा के साहिल से 50 किलोमीटर के फासले तक पहुंच चुके हैं। आपको ये भी बता दें कि साबिक सीनेटर मुश्ताक अहमद खान ने एक वीडियो जारी किया था। उन्होंने अपने पैगाम में कहा था कि ये उनका आखिरी पैगाम हो सकता है। उन्होंने गाजा में मासूम बच्चों के लिए अपनी आवाज बुलंद करने और फलस्तीन के लिए बेलौस काम करने वाले तमाम लोगों की हिफाजत के लिए दुआएं करने की दरख्वास्त की थी। तेलंगाना जागृति की सदर के कविता ने नामपल्ली नुमाइश मैदान में मुनाकिद अल्लाई बल्लाई प्रोग्राम में शिरकत की और 20 सालों से सबको मुत्तहद करने वाले बीजेपी रहनुमा बंडारू दत्तात्रेय की सताइश की। हरियाणा के साबिक गवर्नर बंडारू दत्तात्रेय की ज़ेरे निगरानी उनकी दुख्तर ने नामपल्ली नुमाइश मैदान में जुमा को अल्लाई बल्लाई प्रोग्राम का इनेकाद किया। इस प्रोग्राम में तेलंगाना जागृति की सदर के कविता ने भी शिरकत की। उन्होंने अपने खिताब में कहा कि पिछले 20 सालों से बंडारू दत्तात्रेय सियासत, जात और मजहब से बालातर होकर अल्लाई बल्लाई के नाम से तकरीब मुनक्किद कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि बंडारू दत्तात्रेय ने इस प्रोग्राम को तेलंगाना की सकाफत की अक्कासी करने वाला प्लेटफॉर्म बनाने की कोशिश की है और उन्हें इस तरह के प्रोग्राम में शिरकत करके बहुत खुशी महसूस होती है। ये कविता ने बंडारू दत्तात्रेय की दुख्तर विजय लक्ष्मी को भी मुबारकबाद पेश की। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान
German trained senior orthopedic surgeon and director, Mahir doctors Dr. Wasif Azam और Dr. Bharvi Chunduri, senior cardiologist और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल। वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मन 10 सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अतापुर,